जितनी आप खुल के बात करेंगे. So welcome once again to this workshop, and this is going to help you in more ways than one. Enhancing your personality, developing your communication skills, knowing the technicalities, how can you crack any interview, how can you crack any competitive examination. So first thing is very important, which is to attend your class. Number two, keep your cameras on so that you can know what is happening, so that I can know that you are there in the class. Because sometimes what happens, you log in and then you move out. So which is like, it's like talking to somebody who is not even there in the room. It is simply a waste of time. Sometimes I call out your names, but no response. It means you're simply not there in the room. So I'll share the screen with you. And then the second part will be the question answer round. There are 10 to 12, 13 questions which I've given you. And you will be needing to ask questions, like the very basic questions you can ask. Each one of you is aware of the personal interview, the PI. And what are the basic things which you have to answer, like your name, your hometown, your current educational qualification, your interest, your hobbies, what languages you can speak, what are your short-term goals, what are your long-term goals. Ma'am, meeting room में join कर लीजिए. Talking about your strength in a few sentences. Okay. And the classes of PCA will run as usual tomorrow at 4 o'clock. Okay, आपका classes जैसा चलता है वैसे चलेगा 4 बजे. But I'm including you in this class because what I saw yesterday, I thought you need a great deal of help. So let's start. Interview skills, as you see. So these are some easy steps. Do not be frightened with any interview. Interview को डरने की चीज नहीं है. So do not be frightened. Do not be demotivated. कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा. Because students are there to learn. और पहले if you raise your hand that I am not going to make it, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा. Some people are very weak in your class. Others are speaking. Some others are trying to say something, trying to be interactive. But then you need to speak. First of all, you need to open up. सबसे पहले क्या होता है, पहले अपना हेजिटेशन को आपको दूर करना है. और वो तभी दूर होगा जब आप वेंचर आउट करेंगे, तब आप कोशिश करेंगे. All of you in BCA class made an attempt. जितने भी बच्चे थे ऑफलाइन क्लास में, सबने पोडियम पे आकर के वन बाय वन उन लोगों ने कहा, कुछ भी कहा, 1 line, 1 sentence, 2 sentences, couple of sentences, but they all seemed eager to learn. जब तक ये ईगरनेस नहीं होगा, जब तक ये इच्छा नहीं होगी, जब तक ये डिजायर नहीं होगा कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ करना है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता. That intrinsic motivation has to be there. Intrinsic का मतलब अंदर से मोटिवेशन कि मुझे करना है. जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे. So one thing was very positive for me that each one of you came to the podium and spoke. जितना भी बोलना था, जैसे भी बोलना था, एक बात उनमें है कि उनको सीखना है, उनको आगे बढ़ना है. And time is ticking by. अब ये मत मुझे 1 साल तो है, अभी बहुत टाइम है, अभी हम कर लेंगे, I can do it. अभी बहुत वक्त नहीं है. जो अभी तक हो जाना चाहिए था वो तो नहीं हुआ. तो लेट अस स्टार्ट. ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा. जिस वक्त आप स्टार्ट कर लेंगे, यू आर ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. द मोमेंट यू फील कि मुझे करना है एंड आई हैव टू डू दिस एनी हाउ, तो ये आपको
स्ट्रॉन्ग विल पावर जिनका है कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, आई कैन डू इट, अदर्स हैव डन इट। स्टूडेंट्स जो आपसे पहले थे, आपसे ज्यादा वीक थे, जो कि बिल्कुल नहीं बोलते थे, अभी दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन इन गुड कंपनीज। जो कि माय नेम इज भी नहीं बोल पाते थे, खड़े हुए होकर के बैठ जाते थे। कितने लोग तो मे आई लीव करके बाहर जाते थे और घर चले जाते थे, 2 दिन के बाद आते थे, पता चला कि बाहर निकल के उनकी उल्टी हो रही है। इतनी घबरा जाते थे कि वॉमिटिंग हो रहा है, बच्चा कहाँ गया। मैंने कहा गो आउटसाइड एंड से मे आई कम इन एंड कम। तो बाहर गया तो बाहर ही चला गया। तो मैंने किसी को भेजा कि व्हाई डोंट यू गो एंड सी वो कहाँ है। और वो फिर ढूंढा गया उसको, तो मैम वो नहीं है। फिर उसको उसके रूममेट बोला कि मैम वो घर चला गया है, एंड ही डिड नॉट कम फॉर 2 days। 2 दिन के बाद वो आया, तो फिर क्वेश्चन रुका नहीं, फिर उसको पूछा गया गो आउटसाइड में आई कम इन। फिर वो बाहर गया, उल्टी शुरू हो गया, उसकी उल्टी शुरू हो गई, इतनी घबराहट में उल्टी शुरू हो गई उसकी। तो मैंने काम डाउन, तो हमने कहा कि तुम बैठो और तुमको जब तुमको लगे कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ तब तुम हाथ उठाना, तुमसे कोई नहीं कुछ पूछने वाला है। तो तुम ऑब्जर्व करो लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तुम देखो, ठीक है। और तब जब तुमको लगेगा कि तुम बोल सकते हो, देन यू कैन रेज योर हैंड्स। तो वो चुपचाप से बैठ गया, काम, बिल्कुल कूल डाउन हो गया कि मैम तुम तो पूछेंगे नहीं। और किसी पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती भी, उसको लग रहा था कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं आई एम फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, इंसल्टेड फील को उसको हो रहा था। मैंने उसको काम डाउन कर दिया, तुम चुप रहो, तुमको कोई नहीं पूछेगा। तुम जब तुमको लगेगा कि तुम बोलने के लायक हो, तुम बोलना चाहते हो, यू कैन रेज योर हैंड, तो तुमसे पूछ लेंगे। होल वीक को चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सुनता रहा। और 1 वीक के बाद मेरा क्लास होता था, उन लोगों के क्लास में, नेक्स्ट उदास का क्लास होता था, फिर मेरा क्लास होता था। तो बैक टू बैक क्लासेस चल रहा था IHS का। और हफ्ते में इन वन वीक एक दिन थर्सडे डायरेक्टर सर भी आते थे क्लास में। दिस वाज द क्लास व्हिच वाज हेल्ड इन कुलडिया ब्रांच। तो मेरा क्लास लगा हुआ था, पुदार सर का भी लगा हुआ था, डायरेक्टर सर भी थर्सडे के थर्सडे आ रहे थे। अब उसकी तो हालत एकदम पतली हो गई, और वो अटेंड ही नहीं करता था। वो मेरी क्लास चुपचाप बैठा, हम श्योर कर दिए थे कि तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है। तो वो अश्योर्ड होकर बैठा था। बाकी किसी क्लास में मैंने पूछा यू अटेंड द क्लास, नो मैम। एक हफ्ते के बाद धीरे से वो हाथ उठाता है, मैं मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक। मैंने कहा कि वहीं से बोलो तुम। तो नहीं, हम बाहर से आएंगे। ठीक है तो जाओ। तो फिर बाहर गया, वो आया, बच्चों ने उसको मदद किया। मैंने कहा आस्क हिम क्वेश्चंस, तो बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो सुनते सुनते वो बोलना शुरू किया। अभी वो बहुत अच्छे पोजीशन पे। एक बार उसका इन at that span of time he was interviewed in TCS and Wipro दोनों, और दोनों में ही सिलेक्शन उसका हो गया। अभी उसका 5-6 years से इज वर्किंग इन Wipro, और इतना कॉन्फिडेंट। अब ही स्पीक्स ओनली इंग्लिश। फेसबुक चैट में हम लोग करते रहते हैं, कभी कभी पूछता रहता है कि मैम जो क्लासेस मिला था सिमज में, वो यहाँ बहुत काम आया। ओके, डेफिनेटली Excuse काम me, आएगा। ma'am. यस। तो आप, कहने का मतलब है कि आप भी उनसे बेटर पोजीशन में है, राइट। और कुछ लोग हैं जो उसी तरह के होंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। जब विल पावर रहेगा तो आपको जरूर हो जाएगा। ये कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस Ma'am, some people are waiting room. यस, आई हैव सीन। सो या, तो मेरा ये आपको केस स्टडी बताने का मतलब, मकसद सिर्फ इतना था कि जब उससे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। यू कैन डू इट। सो इंटरव्यू स्किल्स, there are some tips which you would like to take down, right? So there are some easy steps, not difficult, some easy steps that you can take that will increase your chance of success at interview, any kind of interview. अगर आप लोग लॉग इन नहीं किए हैं तो हाउ कैन यू सी द स्क्रीन? ओके फाइन। सबसे पहले क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल remember that job interviews should be a process of
टू वे कम्युनिकेशन। जब जो इंटरव्यूज होता है, ये प्रोसेस होता है, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि जवाब सवाल आप करेंगे, उनका सवाल होगा, हिज क्वेश्चन एंड योर आंसर्स। आप बहुत तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की बात। बहुत कुछ आप बोल के बताते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, यस नो, अपना नाम, वर्बली, मतलब जो आप वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और बहुत कुछ आप बोलते हैं बिना बोले। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके हाव भाव, द वे यू आस्क मे आई कम इन, आपका उस वक्त एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या आप डरे हुए होते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो पहले वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यू convey a lot when you are not speaking and you are conveying so much with your clothes, the power of clothing। अब आप बताइए कि what is, क्या क्लोथ को भी पावर होता है? can your clothes empower you? नहीं। yes please I answer think the no, question। ma'am. no, मतलब कपड़े का कोई महत्व नहीं इंटरव्यू में। है मैम। यस मैम, यूनिफॉर्म होना चाहिए मैम। क्लोथ्स आर द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू सबसे पहले आपकी कनेक्ट होती है। when अट्रैक्टिव you होना चाहिए ड्रेसेस, not attractive, formal फॉर्मल फॉर्मल होना चाहिए। मतलब लाइट कलर्स शर्ट्स, लाइट कलर्स ट्राउजर्स, डार्क ब्लैक शूज, पॉलिश्ड, नीट एंड क्लीन। आपका सॉक्स और आपका ट्राउजर्स मैच करना चाहिए कलर में। फॉर गर्ल्स लाइट शेड्स, groomed, well groomed, your hair should be proper। तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक देना है। आपके ग्रूमिंग और आपका क्लोथ बताएगा कि यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड। सो क्लोथ्स गिव यू दैट पावर। तो बिना बोले क्या क्या चीजें सामने आती है? योर क्लोथ्स, And eye contact is most important. आई कॉन्टैक्ट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले तो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन। सबसे पहले जो लोग देखते हैं वो आपका गेटअप देखते हैं, आपका क्लोथ देखते हैं, आपको देखते हैं, आपको वेल ग्रूम दिख रहे हैं कि नहीं। टेक बिफोर द इंटरव्यू, टेक अ शावर। एवरीबडी टेक्स अ शावर, पर्टिकुलरली उस दिन बिल्कुल शैम्पूड हेयर, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो, नीटली combed, use gel। You should look neat and clean. This means you should look just out of the bath, just out of the shower room। एक फ्रेशनेस आपके फेस पे आना चाहिए। नीट एंड क्लीन लुक, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, वेल आयरन। So these are the things you convey without saying anything। आपका एक्सप्रेशन, अब बोल रहे हैं आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड और आपके चेहरे पे लग रहा है कि 12 बज गए। तो योर फेस शुड ऑलवेज एक्चुअली स्माइल। जब आप अंदर आते हैं, स्माइल at the people। मे आई कम इन, इट शुड बी अ वेरी कॉन्फिडेंट मे आई कम इन। इन्हें डर के मारे हालत खराब है, मे आई कम इन सर, लोगों ने तो सुना भी नहीं और तुम वही ऐसे टेढ़े बन के खड़े हो, हाँ, जैसे कल हो रहा था। तो मैं कम इन, दिस शुड बी वेरी स्ट्रांगली पुट, एकदम असर्टिवली पुट कीजिए, स्मार्टली पुट कीजिए। आपकी वॉइस होना चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। बहुत जल्दी मत बोलिए, घबरा के क्या होता है, नर्वस, व्हेन यू आर नर्वस यू स्पीक वेरी क्विकली, कि जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर लेते हैं इसको। सो मे आई कम इन, कहाँ आप और रॉन्ग करते हैं। माय नेम इज, अब क्या बोल रहे हैं, आपका वॉइस इतना लो हो जाता है उस वक्त
कि क्या बोल रहे समझ में नहीं आता है। नेम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपने बारे में आप बोल रहे हैं, प्रोनाउंस योर नेम परफेक्टली, करेक्टली, ठीक है। The first remember that job interviews should be a process of a two-way communication. तो two-way communication क्या हुआ? आपका सवाल, आपका जवाब। बहुत चीज आपके फेस पे भी आता है। two-way communication इसलिए कि आप हर 24/7 जितनी देर वहां बैठते हैं उतनी देर वो आपको देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं। तो आपके एक्सप्रेशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऊब रहे हैं या आप डरे हुए हैं या मतलब कौन सा सवाल पूछ रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बहुत कुछ आपके चेहरे के हाव समझ में आ जाता है और पता चल जाता है कि आप वाकई जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप जस्ट यूं ही से आ गए। आप डैम केयर करता है एटीट्यूड। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत जो सीवी जिनका होता है बड़े बड़े कंपनीज के लिए जाता है, तो उन लोग इतने एरोगेंट होते हैं कि उन लोग का डैम क्या अप्रोच उनके चेहरे पे रहता है। बाद में उनके सीवी पे लिख दिया जाता है एरोगेंट, मतलब एरोगेंट है वो। जॉब मिले चाहे मिले को मतलब नहीं है, मैं तो बस यूं ही से आगे बढ़ते हुए। तो ये चीज तो बोलते तो नहीं है, लेकिन उनके जवाब से, उनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाता है कि द पर्सन इज एरोगेंट, राइट। तो टू वे कम्युनिकेशन, आप उनको देख रहे हैं, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंटरव्यूइंग यू, आर यू इंटरेस्टेड? आपको इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरव्यू देने में, या आप यूं ही तो दे रहे हैं डर के मारे, हालत का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, क्लास तो किए है नहीं क्लास किए फिर भी डर लग रहा है। तो किनको डर नहीं लगेगा? जो अपना क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे तरीके से किया हुआ उनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। यू शुड एंजॉय गिविंग एन इंटरव्यू, और जब आप एंजॉय नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट इंटरव्यू। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि यू हैव टू एंजॉय, आपको you have to enjoy asking questions, you have to enjoy answering questions, you have to enjoy being interviewed. ये हो गया two-way communication, right? So not only are they a tool of employers to use to evaluate you, but they are also but they give you an opportunity for you to assess the job, the organization, and to see if there is a fit. मतलब वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स नहीं है, वो आपको एक मौका दे रहे हैं कि यू नो अबाउट द कंपनी, नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन द कंपनी, एंड इट फॉर यू टू डिसाइड। दे आर नॉट ओनली टेस्टिंग यू, दे आर ऑल्सो पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू टेस्ट, ताकि आप समझ सके कि मैं यहाँ काम करने के लिए मैं फिट हूँ कि नहीं, और इज इज द राइट जॉब फॉर मी। तो इंटरव्यू इज इन अ नटशेल, इट इज opportunities which you can take. So the keys to a successful interview are preparation and practice. This is what we are doing. अगर प्रिपेयर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी है ही है, मैं बोल लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, आई एम गुड एट इंटरव्यू, क्या पूछेंगे अपने बारे में बता दूंगा। तो आपको जो पता है कि बता दूंगा, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडिंग क्लासेस, दो चीज होती है। So when you are attending classes, you may be good at communication, but you should know the technical know-how. कैसे क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है। इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स, you should understand how to handle skills. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो यूजलेसली टाइम मत वेस्ट कीजिए इंटरव्यू का। स्ट्रेट अवे आप बोलिए, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कुड यू पुट इट सिंपली। उसमें कोई आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप 2 मिनट 3 मिनट गुमसुम बैठे रहते हैं, अब बाद में बोलते हैं आई डोंट नो, इतना खराब इंप्रेशन होता है उसके बाद। यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, असर्टिव होना सीखिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। कोई बेइज्जती की बात नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका हर क्वेश्चन को आप समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। You may understand some questions, you may not understand some questions, but even then you have an opportunity. Do not waste his time, do not give a bad impression by keeping quiet. Instantly आप बोल रही है, very sorry, I regret, can you repeat the question,
Can you put it in another way? Or simply, I'm sorry, I have not understood the question. इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है. अब ये अच्छा है कि गुमसुम रह के बातें बोलना, I don't know. बहुत ज्यादा अच्छा है. ऐसा होता है, चुपचाप बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं. Repeat the question. And after some time, I don't know. मन उसके बाद तो मन करता है कि उसको एक लगा देना. पहले ही बोल देगा, शायद क्वेश्चन चेंज कर देगा. हाँ, पहले ही बोल दे, क्वेश्चन चेंज कर देगा. लेकिन आप सुन तो लीजिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए. Yes, ma'am. Could you repeat that again? Can you come again? इन्हें कि what? क्या? कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे बोलेंगे? I beg your pardon. I beg your pardon. Repeat again. जितना पोलाइट आप रहिएगा, उतने चांसेस हैं ब्राइट आपके. So, yes, preparation and practice. The following suggestions will help you prepare for an interview. Self evaluation. सबसे पहले अपने आप को evaluate कीजिए. See yourself. आप सब अपने आप को evaluate कर सकते हैं कि आप in the parameter 1 to 10 अभी आप कहाँ पर हैं. Be honest to yourself. कि क्या मुझे सब questions क्या मैं handle कर लूँगी. Before I'm starting the interview, evaluate yourself. Self evaluation. कि what is lacking in me. कि मैं confidence, content, कोर सब्जेक्ट्स सबका कैटेगरी बनाइए. अब बताइए किसने क्या कितने पॉइंट्स देंगे अपने आप. बहुत लोग कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है. दे मे बी वेरी कॉन्फिडेंट, बट देन कंटेंट नहीं उनके पास है, कोर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है. तो आप एक मेक कॉलम्स एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ. It is important for you to think about yourself and your past experiences in order to be ready to articulate what you have to offer an employer. So, आप इंटरव्यू जो आपका लिया जा रहा है, आप अपने आप को evaluate कीजिए on the basis of your experience. They are not interviewing you for 2 to 3 years that you are studying in CMH. वो आपके whole life के experience के बारे में बात करते हैं, आपका attitude. They are not thinking about just 2 years, 3 years. They are evaluating for your entire school background, right? From standard 1 to this level. इतने दिनों का जो सरमाया होता है, इतने दिनों का जो निचोड़ होता है, that you have to offer to the interviewer. यानी कि आज कुछ सीखे, आज हम बोल रहे हैं. कुछ चीजें आपने स्कूल में सीखी होंगी, कुछ वर्ड्स आप जानते होंगे, कुछ एक्सपीरियंस आपके होंगे. And there will be so many situation questions. Supposing this happens, then what will you do? Supposing that happens, then what will you do? जैसे questions आता है. Supposing there is an emergency in the office, and there is an emergency in your home also. What will you choose? ऑफिस में भी emergency है और आपके घर में भी simultaneously emergency है. What will you choose? Will you choose to be in the office or will you choose to be at home? What will be your answer, Anupriya? Okay, your answer is home, then that is good. कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं ऑफिस में ही रहेंगे? Yes, you? कंपनी के हिसाब से हम देखा जाए तो कंपनी में काम करते हैं ज्यादा अकॉर्डिंग टू दैट हम देखा जाए कि कहाँ पे कितना देखा जाए नहीं, इमरजेंसी है बस. द वर्ड इमरजेंसी इज इटसेल्फ. मैम, हेलो मैम. यस, आप क्या चूज करिएगा? इफ अ सिचुएशन अराइजेस that there is an emergency in the office and at home, my question is, where will you choose to be? कहाँ पर आप रहना आपको लगेगा? क्या कैसे आप evaluate करेंगे अपने आप को? Yes, बोले, this is a simple question. कहाँ रहेंगे आप? Yes, anybody in the? मैम घर में कोई परिवार है तो ऑफिस चूज करेंगे. अगर अगर मगर की बात नहीं है.
अगर मगर की बात कहाँ यहाँ पर है? बात इतना है सिचुएशंस के अनुसार, where would you choose to be? होम फर्स्ट। कितने लोग बोल रहे हैं ऑफिस? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग बोल रहे हैं कि ऑफिस में रहूंगा मैं? ऑफिस में घर छोड़ दोगे? मुस्कान कुमारी, बीसीए, Yes, कहाँ रहिएगा? दोनों जगह इमरजेंसी हो रहा है, घर भी और ऑफिस में भी। Where would you choose to be? home, ma'am. जितने लोगों का आंसर होम है, they will be given marks. और जितने भी लोग कहें कि मैं ऑफिस में रहूंगा, they will not be given any marks, because ये क्या होता है कि वो when you इमोशनल कनेक्टिविटी मैम। नहीं, the right answer is I would prefer to be at home, because in office there are so many people who can take care, but at home I am needed more at home, because heart is where the family is, right? There are so many people here, but then I would prefer to be at home. So this will be the right answer. दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है कि would you ever lie for a company? किसी कंपनी, अपनी कंपनी के लिए, supposing you are working in Wipro or Cognizant or Infosys, would you lie for the company? झूठ बोलोगे क्या कंपनी के लिए? यस मैम, How and why? कंपनी का के लिए बोल सकते हैं। Muskan is smiling. अच्छा, why not? Why and why not? Why yes and why no? कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, झूठ बोलना महापाप है, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं। बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, अरे कि झूठ ही बोलता है, इसको नहीं रखेंगे। फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं बोलेंगे मैम? Alright. तो यहाँ भी, झूठ बोलना चाहिए मैम। यहाँ भी अगर कंपनी के फायदा हो रहा है और कंपनी के फेवर में आप वहां जहाँ काम कर रहे हैं, कंपनी की इज्जत के लिए, फॉर द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, इफ द सिचुएशन अराइजेस, यस आई वुड लाई फॉर द कंपनी। तो इसमें क्या देखा जाता है कि कितने सुलझे हुए दिमाग के आप हैं, आपका थॉट प्रोसेस देखा जा रहा है यहाँ पर कि बंदा सोचता क्या है। झूठ बोलना। तीसरा जो क्वेश्चन है कि इफ यू आर पेड नो सैलरी, वुड यू स्टिल वर्क फॉर दिस कंपनी? नो मैम। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो काम करूंगा, मुझे सीखना है, मुझे तो। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अ गुड आंसर कि money doesn't matter at this point of time, because I am in the learning stage, and the more the opportunity to work in such a company, reputed company, will this is what I have been looking for. But then some sort of remuneration is always expected for motivation, because money is the greatest of all motivations. तो कोई भी क्वेश्चन का हैंडल कीजिए इस तरह से कि कोई भी चीज आपके अगेंस्ट में नहीं चला जाए, राइट? गेटिंग बैक। So when you're learning to evaluate yourself, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। आपकी जो पढ़ाई शुरू से, आपका फैमिली बैकग्राउंड सामने आ जाता है, आपका कल्चर आ जाता है सामने, आपका संस्कार आ जाता है सामने इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में वो सब कुछ ऑफर कर रहे हैं जो आपने सीखा अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने स्कूल से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल डेट, whatever you have learned socially, whatever you have learned out of your classroom, this is very important, your experience. Now these things you are going to keep into account. How your present and past experience relate to the position. किस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट पोजीशन, आपका सिचुएशन जो है, एक्सपीरियंस जो है, जो आपको करंट आपको सामने इंटरव्यू के सामने बिठा दिया है, क्या चीज है? हाउ डू यू थिंक यू आर फिट टू फेस द इंटरव्यू ऑफ दिस जॉब? You can write down these suggestions. You can consider the following topics. Number one is how your present and past experience relate to the position.
मतलब किस तरह से आपने पढ़ाई की है कि आपको कॉन्फिडेंस करके सामने ला के रखा है कि आप इस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं. You can talk about your Regular- education, you can talk about your skills developed, कि किस तरह से आप इसके लिए तैयार हैं. Second is your current and future career goals. करंट का जो करियर गोल क्या है और फ्यूचर करियर गोल क्या है. Means long term goal and short term goal, ma'am. यस, करंट हो वही शॉर्ट टर्म में, हम कल दिखा दिया आपको क्वेश्चन. तो माय करंट करियर गोल एंड माय फ्यूचर करियर गोल. आप आंसर्स तैयार करके रखेंगे. इफ यू डू नॉट, इफ यू फील द नीड, आई विल also give you some hints on how to answer these questions. Third, what skills and expertise Excuse me, ma'am. you have to offer. Yes. मैम गोल तो दो प्रकार के हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल गोल के बारे में बताना होगा ना. हाँ. एक पर्सनल गोल, हाँ, एक तो प्रोफेशनल गोल. करियर गोल तो वही होता है ना. Okay. करंट गोल, मेरा करंट गोल आपका क्या है, मैंने आपको इसको समझाया था कैसे आंसर करना है. करंट करियर गोल्स क्या है? व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स? करंट. My short-term goal is to be firstly pass out the graduation. और कौन सा complete स्किल्स में पास आउट तो तुम्हारा भी 1 साल है. करंट पूछा जा रहा है. अभी तुम्हारा करियर गोल्स क्या है? व्हाट? इंटरव्यू क्रैक करना मैम, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. May I, ma'am? इंटरव्यू तो बहुत बात की चीज है, कपल ऑफ मंथ्स के बाद की. करंट मतलब अभी, आज, कल, दिस मंथ. आपका क्या है करंट करियर गोल? क्या है फॉर दिस मंथ? ऐसा नहीं, आपको इसको तैयार करना है. Attending on classes, attending work classes, on writing skills, to work on your writing skills. Very good. What else? make shortest aim, Prioritizing, time management, spend more time in lab, spending time in lab. Yes, very good. Browsing the net, लाइब्रेरियन तो getting more information about information technology, gathering all the updates of IT, searching the SWOT analysis of various companies. तो करंट मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो पहले करंट गोल तो सामने रखिए ना कि व्हाट आर माय करंट करियर गोल्स. मेरा करंट करियर गोल क्या है? मेरा करंट करियर गोल है कि आपको इंटरव्यू स्किल्स का वर्कशॉप बिल्कुल थरो करा देना, आपकी कम्युनिकेशन एनहांस हो ताकि वेरियस एक्टिविटीज करा देना. दीज आर माय करंट गोल्स. तो जीडीज, डिबेट्स, एक्टिविटीज, skits, plays, so that for you to improve your communication skills. For all that is required for you to be successful in life, isn't it? So your future career goals and your current बहुत जरूरी है, because your current goals will take you to the top. What skills and expertise you have to offer? It means another question like this is the similar question synonymous is, why should we hire you? What skills and expertise you have to offer? ऐसा क्या आप में स्किल है, कैसा क्या एक्सपर्टीज है कि आपकी सिलेक्शन की जाए? I am fresher man. I have knowledge of theoretical, but ma'am, we can explain our all advantages in that categories. Yes, आपका स्किल्स क्या है, आपका प्लस पॉइंट्स क्या है, आपका गुड पॉइंट्स क्या है. मैंने पहले ही बताया था, SWOT एनालिसिस कर लीजिए. आपका स्ट्रेंथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल. इंटरनल क्या हुआ? जो कि आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, दैट इज द इंटरनल. एंड एक्सटर्नल क्या है? जो आपने अचीव किया, जो आपने लर्न किया है, जो आपने सीखा है. सीखने के बदौलत जो आपने उसको अपने को एक्सपर्ट बनाया है. नॉट एक्सपर्ट एक्चुअली, बट देन योर गुड पॉइंट्स, आपका प्लस पॉइंट्स क्या क्या है. it means expert man. हाँ, yes. All right. The skills that you would like to develop or improve. यहाँ पर है कि वो चीजें जो आपकी improve नहीं है, मतलब यहाँ पर weakness की बात हो रही है कि, लेकिन पूछने का तरीका भी ये होता है. The skills and
the skills that you would like to develop to improve, मतलब कि और क्या चीज है जो आप लैक कर रहे हैं, what are your drawbacks जो आप चाह रहे हैं इसको ठीक कर लेंगे आप, ये भी मेरा उतना ठीक नहीं है उसको मैं ठीक कर लूंगा. What is that? Public speaking. Okay, the skills that you would like to improve, develop or improve. जैसे कोई सब्जेक्ट कोई आपका वीक आ रहा है तो उसको आप you will give more time, you will spend more time on subjects which are Weak. your weak subjects. Location, salary and lifestyle priorities. यहाँ पर है कि are you willing to relocate? There was a question like that. तो फिर which location will be comfortable, salary तो जब पूछा जाता है कि how much salary will you are you expecting, तो जवाब एक ही रहता है according to the company's norms. अब ये नहीं कि मुझे 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, नहीं. आप leave that to the HR as per the norms of the company. Kinds of people and environment you prefer. यहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड होना है कि किस तरह के माहौल में आप काम करना पसंद करें. Are you willing to work? Give me your preference कि किस तरह की कंपनी के साथ आप किस तरह के कंपनी में आप काम करना चाहेंगे. Kinds of people and environment you prefer. तो कैसा environment आप कैसा people who are friendly, people whom you can trust, people who can trust you. ऐसे लोग जो तुम पर भरोसा कर सकते हैं, तुम्हें सीखने का मौका दे सकते हैं. So I would like to work with people with mutual trust, people who can give me an opportunity to learn, to train. हाँ, और जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसको सीखने के लिए you need a group of people who can help you to learn. तो आपका आंसर भी उसी तरह से होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, कुछ भी और यहाँ पर है नहीं. ठीक है. I would like to work in a company with a team. which will I would like to work with people who trust me, people who can understand environment, a friendly environment. Hostile नहीं, a friendly environment will always be preferred. Technical term में कहा जाता है amicable environment. Amicable मतलब AMICABLE. I would like to work in an amicable environment. Amicable का मतलब होता है friendly environment. I would like to create a comfort zone in my organization with my dedication and hard work. तो आप माहौल को तो आप खुद क्रिएट करेंगे ना. आप ये भी बोल सकते हैं I can create I can contribute to a happy environment. I can contribute to an amicable environment at my workplace. लोकेशन का मतलब है आयु वैसे बहुत लोग चेन्नई का नहीं जाना चाहते हैं, बहुत हैदराबाद जाना चाहते हैं. लोकेशन आपको प्रेफरेंस आपको दे देता है कि भाई मुझे लाइक 2-3 देता है, आपको विप्रो में भी देते हैं. फिर आपको you can give your preference. I would like to work in Kolkata, I would like to work in Chennai, I would like to work in Bangalore. It's all up to you. They will give you the location. Salary and lifestyle priority. Lifestyle priority मतलब होता है कि हाँ किस लाइफस्टाइल से आप, जैसे बहुत लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं ना कि इवनिंग में नाइट टाइम फ्लेक्सिबल आवर्स आपको दे देते हैं, फ्लेक्सी टाइम दे देते हैं. Many people are working night shift. तो क्या लाइफस्टाइल है आपका, क्या नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल. Past experiences you want to highlight such as volunteer work, hobbies and travel. तो ये लास्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपना एक्सपर्टीज, अपना स्किल, अपना सोशल स्किल्स को आप एनहांस कर सकते हैं. पास्ट एक्टिविटीज जब आपने हाईलाइट आपको करना है, क्या आपने वॉलंटियर किया किसी इवेंट को, या कोई हॉबीज है जिसकी वजह से आपको प्राइज मिला है,
या कोई any travel which has given you immense tremendous learning experience, you can highlight all these things. So अपना होमवर्क करिए, होमवर्क करने के बाद क्वेश्चन जितने भी लिख जाइए, these are the questions, these are the points you need to answer. और क्वेश्चंस रहेगा तो आंसर भी सामने आते रहेंगे. You can research the Google for each point that you see. कि लोग क्या आंसर करते हैं. How does Kuda answer? How does Google answer? How do your teachers answer? You can ask me also and see how I answer these questions. Okay. And before the interview, there are certain points that you should do. We'll take it up in the next class. I'll give you 2 minutes more if anybody can introduce himself today. Yes, there are 55 people online, offline together. What happened? Yes, ma'am. Can anybody answer the question which I gave you in BCA, BSCID both? The 5-6 questions up to your short-term goal, your long-term goal. Anybody can answer the question? Yes, Yeah, stop ma'am. talking. Yes. Please raise your hands. Hello. Round number 13 क्या बात? Manish Kumar is okay. Since we're running out of time, anybody in BCA can answer the question? Muskan Kumari, Yes, sir. answer the first 5 questions. Mukesh Kumar, please answer. Please ask some questions to Yes, Muskan. Mukesh, ask some question ma'am. to Muskan. Which question पूछे? Let it be. Okay. Ma'am, topic was how to introduce yourself. Yes, yes. Yes. What's your name? My name is Muskan. Where are you from? Muskan, you introduce yourself first. Okay. Ma'am, my name is Muskan. I am pursuing BCA from Siemens College. Mhm. And I come from Bhagalpur. My standpoint is I can work a long time. Muskan, I had given some questions. Answer those questions. Your educational qualification, your interest, your hobby, languages which you can speak, your short-term goal, long-term goal, and then your strength. Right? You were not present in the last class. No, I am not present. Okay, attend your classes. Yes, you start. Okay. Please. Yes, but keep your Ma'am, camera may I? on. Okay, Mukesh Kumar, start. Yes, ma'am. My name is Mukesh Kumar Jha. I am from Bihar. My hometown is Samastipur. Samastipur. Samastipur is famous for growing and yielding spices. And I am pursuing BSc IT from Siemens College, Patna, and my university is PPU. My hobbies are playing cricket, workout, sports, fine art, photography, etc. And my interest is listening music, watching movies, bike riding, traveling, etc. And I can speak Hindi, English, and regional languages of Bihar. My short-term goal is to first of all complete my course, attending all classes, working on learning, What are your Mukesh? What are your current goals?
Current career goals. Attending all classes, attending all workshops, always be in a learning mode, spending time in lab, Very good. enhance writing skill, enhance reading skill, and also on technical skills. Continue. And my long term is to become a DBA or successful programmer. Fine. Yes, you. Yes, very good, Mukesh. Thank you, ma'am. Yes. Yes. My name is Nitish Kumar. I am from Bihar and my hometown is Gaya. If I talk about my education, I am pursuing Bachelor of Science and Information Technology for Patna University, and my learning center is CMH College, Patna. If I talk about my technical skills, then I am quite good in C, C++, and Python. If I talk about my strength, then I have a short. Why are you always talking about if I talk about? एक आध बार ठीक है, but not in all the. As far as my education is concerned, as far as my if I talk about replace कर दो उसको. As far as regarding my communication skills, regarding my Python workshop, regarding my plus points, regarding my hobbies and interests, regarding as far as use different phrases. Okay, continue. Okay. My strength is I have a soft skill. I have a positive attitude and positive thinking. I want to learn new things. That's all about me. Okay, my- that's all about me का phrase भी छोड़ देना. And I have soft skills. So soft skills तो आपकी communication में नजर आ ही रहा है. So you do not need to highlight this. I set a clock of soft skills. आप इसको इस लाइन को आप ले सकते हैं. I set a clock of soft skills. I'm particular about my soft skills. It means you are well versed. आप politely बात. Right? तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके कम्युनिकेशन के सामने आए हैं. You need to highlight. I am good at soft skill or I have soft. Okay. मैं मृदु भाषी हुई थोड़ी आप बोला. पता चलता है सामने वाले को ना. My weakness is that lack of. वीकनेस को थोड़ा हाइड करके चलते हैं. क्वेश्चन था ना, कौन सा चीज को आपको इम्प्रूव करना है? Which area you would like to improve? Did you write this question down? Okay. I would like to. Please write this question. The skills that you would like to develop or improve. Take this line. The skill that I would like to develop and improve is, this is your weakness. So weakness का नाम सामने लाना ही नहीं है. The skill. हाइड कर देना, पूछेगा तो बताना है. हाँ, Until yes. whenever the Yes. interviewer asks. Yeah. If the interviewer will ask you, what are the drawbacks? What skills need improvement? What are your drawbacks? What skills need improvement? So the skills that I would like to develop and improve is, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उसका नाम लिखो. कम्युनिकेशन स्किल्स आप लिख सकते हैं. सोशल स्किल्स, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपकी बात कम करते हैं. आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माय सोशल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनी सब्जेक्ट व्हिच यू आर वीक इन. Vinayak Gupta, are you there in the class? No, ma'am, he is not present. He's not there. आपके जो क्लास होंगे that will be theory plus practical. ठीक है? Okay. So that you get a chance to speak something. Yes, I will. So this is the first class for BCA and BCIT combined together. That is why I started with the very basic, and I will start on with the grammar also. लेकिन half जो class रहेगा that will be set for practicals. You need to speak a lot.
एक बना के क्लास होती है ना जिसमें 30 minutes teaching and 30 minutes your presentation. Okay, and I'm getting some time because तो चलिए, किसी को और कुछ करना, ग्रामर स्किल्स बहुत जरूरी है जो कि आपको करना चाहिए। बहुत लोग क्या, मैंने आप सबकी कॉपीज चेक की है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आप लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ का कुछ लिख लें। सब्जेक्ट वर्ब बहुत जरूरी है, टेंस बहुत जरूरी है, कहाँ Excuse me, किस ma'am. वर्ब फॉर्म में। हाँ मुस्कान। Ma'am, in interview, ma'am, we can say about the hobbies. हाँ यस, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर हॉबी। मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंटरेस्ट क्या होता है, हॉबीज क्या होता है, कैसे डिफरेंट है। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन द अर्लियर क्लास। हॉबीज वो होता है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप करते हैं कॉलेजेस में, लाइक ड्रामा है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, एक्टिंग है, और जितने भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग कबड्डी, प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग कैरम बोर्ड, जो भी आप खेलते हैं एक्टिविटीज, ऑल स्पोर्ट्स हॉबीज में आता है। और सारे फाइन आर्ट्स आपके आता है, एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब है हॉबीज में। ठीक है, तो मेक योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। Okay. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? No question. रोल नंबर 18 मनीष कुमार क्या बोलना चाह रहा है? नो मैम, नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ाइएगा हम लोग? हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ाइएगा हम लोग? नेक्स्ट क्लास में तो आपको जो अभी पढ़ाया गया उसका तो हम लोग लेंगे ना। ये जो डील किया गया है इसको आप प्रिपेयर करके आइएगा, जो बुलेट्स में आप देख रहे हैं। current what you are taught currently. ठीक है, in every class they will say I will speak in the next class, I will speak in the next class, I will speak in the next class. When will this next class come? तभी तो प्रॉब्लम लिखा बताया गया है, tomorrow never comes. किसमें कहते हैं? Tomorrow never comes. आपका ग्रामर वर्कशॉप भी मुझे कराना है। एक लेआउट आपको बता देते हैं before I sign off today. Let me see. It will take some time. So let us see. I'll give you some vocabulary. What is the meaning of 24/7? क्या मतलब होता है? Yes, anybody? What is the meaning of present there. always present there? और present कहाँ रहता है? 24/7 means all the time. The shop is open 24/7. इसका मतलब क्या हुआ? What do you mean by? ऑलवेज भी देयर, हमेशा खुला रहेगा मैम। हमेशा। Help is available 24/7. Yes, sir. 24 के 24 घंटे, सातों के सातों दिन। 24/7 definition. All the time, always available, without a break. Example, in New York City, a lot of stores are open 24/7.
in Bihar, a lot of কি লিখাল ছবি কৌশল তুমি বলছো কৌশল जा रही हूँ आपको आज vocabulary एटलीस्ट 10, ठीक है। उसको यूज कैसे करेंगे? The medicine shop is open 24/7. I am studying 24/7. इसका मतलब है कि आप बस पढ़ने में लगे हुए हैं। एस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। he is an ace cricketer, मतलब वो बहुत अच्छा खेलने वाला है। विराट सिंह कोहली is an ace cricketer. This definition: all the time, always available, without a break, and round the clock. Round the clock also is a synonym. At the bottom you will see round the clock. Round the clock means always. I am worried about my career 24/7. I am thinking about the interview 24/7. Try to use words in your sentences. Next. Ace का मतलब होता है very good, expert. He is an ace footballer. He is an ace person, a gem of a person, मतलब कि बहुत एक अच्छा इंसान। And ace out भी verb होता है कि I will ace out that interview, मतलब I am taking this ace and putting it into a phrase, ace out. वो इंटरव्यू निकाल देगा। He will ace out that interview. आप लिख लो इस वर्ड सेंटेंसेस बनाएगा। ace out. Ace adjective है। He is an ace person. Adjective हो गया। Describe कर रहे हैं किसी pronoun को। He. And ace out verb हो गया। I will ace out this exam. In the past tense भी आप ले सकते हैं। He aced out in the exam. He aced out in the interview. He aced out in the presentation. तो ace out को aced out कर सकते हैं। I am acing out in all my classes. आप हर क्लास में अच्छा कर रहे हैं। ace का मतलब क्या हुआ? To do something very well, particularly an examination. I will ace that exam. First rate. Adjective हो गया। Verb भी मैंने कहा था, verb भी है और adjective भी है। और an expert noun. You can use it as a verb and as a noun and as an adjective. I am going to ace this exam. I have been studying all week. मतलब मैं इस एग्जाम में अच्छा करूंगा इसलिए कि मैंने पूरे सप्ताह हमने I have been studying all week. Louis Lane was the ace reporter of the Daily Planet. Next word is all-nighter. All-nighter का मतलब होता है स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जो स्टूडेंट रात में जग के पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स who keep awake all night to study. तो ऑल नाइटर जब आप यूज करते हैं तो पुल लगा देते हैं। आई विल पुल एन ऑल नाइटर, मतलब मुझे रात में देर तक जागना है। अब रात में आप किसी से चैट कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो ऑल नाइटर नहीं हुआ। लेकिन एनीथिंग प्रोडक्टिव, देन यू कैन से आई विल पुल एन ऑल नाइटर बिकॉज बिफोर द एग्जाम। देर रात तक जाग के पढ़ना। The definition of all-nighter: a study or work session that goes through the night. जो रात भर में आप करते हैं, ठीक है? Studying without sleep, usually a last-minute course of action. Write down the example sentence. We pulled an all-nighter to finish the report. मतलब रिपोर्ट खत्म करने के लिए रात भर आप जागे।
I pulled an all-nighter to study for my math exam. Vocabulary तो अब जितना आप gather कर सकिए आप, और idioms and phrases आते हैं MCQs में. For example, what is an all-nighter? A, B, C, D में आपको choose करना होता है. An arm and a leg. क्या? अब बताइए क्या हो सकता है मीनिंग इसका? मान लीजिए कि एमसीक्यू में आपको ये वर्ड आ गया, ये फ्रेज आ गया, एन आर्म एंड अ लेग, व्हिच मींस एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया उसका, कोई चीज बहुत महंगा है, या कोई चीज चोरी पकड़ी गई किसी की. क्या हो सकता है? ये चार जो मैंने बताया है उसमें क्या है? किसी की चोरी पकड़ी गई. हाँ हाँ था भाई, वो तो ऑप्शन में नहीं था. मैंने जो ऑप्शन दिया उसमें था. मैम एक बार फिर से बोलिएगा. Someone has exposed, मैम. क्या? हाँ अच्छा ठीक है, मैंने ऑप्शन दे रखा हुआ है. सबसे पहले एक्सीडेंट हो गया, नंबर 1. नंबर 2, चोरी पकड़ी गई किसी की. नंबर 3, किसी का ऑपरेशन होने वाला है. और नंबर डी, कोई चीज बहुत महंगा है. चोरी पकड़ी गई किसी की. मैम चोरी चोरी पकड़ी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई. या नो, यस मैम. इसका मतलब होता है कोई चीज इतनी महंगी है, समथिंग विच इज सो एक्सॉर्बिटेंट, सो कॉस्टली कि हाथ पैर बेच के खरीदना पड़ा. बताइए, कभी आप समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या होता है. इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़िए. An arm and a leg. A large amount of money, very expensive or costly. Example, my new Mercedes cost me an arm and a leg. मतलब Mercedes खरीदने के लिए इतना महंगा कि हाथ पैर, गनीमत है किडनी का नाम यहाँ पर लिया है. Something which is very costly. यूज कैसे करेंगे? an arm and a leg अगर एमसीक्यू में आता है, large amount of money, very expensive or costly. Some things are so expensive that they are painful to buy and cost everything you have. कुछ चीजें इतनी महंगी होती है कि आप अपना सब कुछ बेच के भी नहीं खरीद पाएंगे. नहीं खरीद पाएंगे, या सब कुछ बेच के खरीद पाते. At the end of the rope. At the end of the rope. क्या मतलब होता है? ऑप्शन या तो टिक पे हो गए मैम. सक्सेस. ऑप्शन बताए. ऑप्शन होगा मेहनत करना, टू ट्राई. नंबर 2, टू फॉल डाउन, एंड ऑफ द रोप, गिर जाना. कुछ दिमाग काम नहीं करता, not knowing what to do. And number 4, calling for help. I have no idea what to do. What should I do? To be out of option or alternatives course of action, to be stuck in a bad situation. मतलब सिरा के एंड तक आ गए हैं और सोचते सोचते दिमाग का दही बन गया और समझ में अभी भी कुछ नहीं आया. ऑप्शन सी हुआ ना मैम. हाँ, to be out of We always options or alternative course of action, to be stuck in a bad situation. Example,
I'm at the end of I am at the end of my rope. I lost my job, my car, and I don't have any money in the bank. अभी मैम आर मैंने लिख करके गाड़ी खरीदा था, फिर वो बेच भी दिया उसको। फिर वो बेच भी दिया। तो आई एम एट द एंड ऑफ द रोप, क्या क्या है? ये इसका मतलब क्या होता है कि no loss? मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से? A rope is thrown to someone who is in difficult place. अगर कोई नीचे गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? रस्सी डाल देते हैं। डाल देते हैं। Such as deep water or the edge of a cliff. अगर कोई पहाड़ के नीचे से गिर जाता है तो क्या करते हैं? रस्सी फेंकते हैं हम लोग ताकि उसको पकड़ के आ जाए। If there is not enough rope, the person might be in trouble. अगर रोप नहीं है तो उस इंसान को परेशानी हो जाएगी। So to be at the end of the rope means that there is no more help available and the situation is not good. Etymology का मतलब होता है इस फ्रेज का ओरिजिन कहाँ से आता है? It's 10:35. I think I should stop this class now. Yes. So you came to know 5 words, no? Make sentences with these 5 words and please be prepared for MCQs. All right, thank you all.